Thank you, Ravindraji. Now we have Vivek Oberoi sir, chief guest for the day. I now invite our own Vivek sir, Vivek Sikka sir, to invite Vivek Oberoi sir. Vivek Sikka sir, please. Yeah. Am I audible? Yes. A very, very warm welcome to Mr. Vivek Oberoi. All of us know Mr. Vivek Oberoi as an accomplished actor. He made his debut with Ram Gopal Verma's movie Company. That movie which earned him Filmfare Award for the best debut as well as the best supporting actor. But he wears many other hats too. He is a successful businessman. He has set up his own production house. He has invested in a number of startups. He's the co-founder of Swarnim Startup and Innovation University. He has also invested in real estate development. He is a philanthropist too, apart from all these business activities, commercial interests. This man has a heart of gold and has been involved in a lot of charity work where he selflessly devotes his time and energy into helping the needy. In 2006, he received the Red and White Bravery Award for adopting and rebuilding a village in Tamil Nadu in Cuddalore district, which was severely destroyed by the 2004 tsunami. For Mr. Oberoi, charity begins at home. His parents, Mr. Suresh Oberoi, Ms. Yashodhara Oberoi, both have been working towards educating slum children and helping cancer patients for more than 3 decades. His sister, Meghna, collects funds for donation by auctioning her artwork. And after his marriage in 2010, his wife, Priyanka Alba, has also become a part of this philanthropy work. Mr. Oberoi has been an integral part of various projects. One of them is Running One Foundation. And this motive of this foundation is to focus on matters like running schools, providing free food, rescuing girls from child prostitution, healthcare, education, and empowerment of girls. He is also associated with an organization, Devi. The full form Devi is very impressive. The Development and Empowerment of Vrindavan Girls Initiative. Devi runs schools for underprivileged girls in Vrindavan. Under this scholarship, under this scheme, Mr. Oberoi financially supports the higher education of 8 to 10 girls every year. He also takes care of their housing, stay, and medical expenditures. He has also been associated with an organization called Banyan, which looks into the rehabilitation of homeless women with mental illness. This man really deserves an award for all the goodness he is putting back into our society. His efforts are above and beyond, and we all must truly appreciate his good work. And now I request Mr. Oberoi to kindly say a few words. Welcome, Mr. Oberoi. Thank you so much. Jai Hind, everybody. And Sikka ji, thank you very much. आपके आने से विवेक ही विवेक हो गया है. Double. And Krishna ji, thank you so much for associating with FinancePeer. Thank you to every member of CFI for this association. आज दशहरा है. 9 दिन हमने देवी को खूब पूजा और आज देवी की बात शुरू हुई है. सिक्का जी अभी बता रहे थे, तो I just want to share with you why I have such. There's an echo coming from me. Can you guys hear me clearly? Yes, sir. There's an echo. हाँ. तो ये जिसके यहाँ से भी echo आ रहा है, please mute कर दीजिए. So Project Devi के बारे में यही कहना चाहूँगा कि एजुकेशन जो आप लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, मैं खुद यूनिवर्सिटी चलाता हूँ. आज 5000 बच्चे हैं मेरी यूनिवर्सिटी में. 14 कॉलेजेस हैं, 15 कॉलेजेस हैं हमारे. आई थिंक एजुकेशन जिस तरह से एक एम्पावरमेंट एजुकेशन के माध्यम से होती है, इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव दैट इन एनीथिंग एल्स. हमारे देश में खासकर मैंने खुद देखा है, जब 12 साल पहले मैंने प्रोजेक्ट देवी शुरू किया था, तब ऐसे शुरू किया था कि मैं गया था वृंदावन. बांके बिहारी मंदिर आप लोग जानते ही होंगे, यू मस्ट बी नोइंग ऑफ द टेम्पल.
तो मैं वहां गया था और लंबा चौड़ा वहां पे 56 भोग की पूजा होती है, बड़ी पूजा होती है। तो मुझे तो बम्बई में रह के ऐसा लगता था कि 56 भोग तो सिर्फ मिठाई की दुकान है। आई डिड नॉट नो कि एक्चुअल ऐसी पूजा होती है। तो उन्होंने पूरे 56 भोग बनाए और बांके बिहारी जी के लिए लंबी पूजा की। फिर उन्होंने कहा कि भैया ठाकुर बहुत खुश हैं, आप जो चाहे मांगना है मांग लो। और सामने उन्होंने वो पर्दे लगाए हुए थे, किवाड़ खुलते ही आप अपनी मन की इच्छा प्रकट कर देना और सब पूर्ण हो जाएगी। अब इंसान है तो लालच तो आता ही है। तो कहीं ना कहीं मैं भी सोचने लग गया कि क्या चाहिए, क्या मांगना चाहिए मुझे। शुड आई आस्क फॉर ब्लॉकबस्टर फिल्म, शुड आई आस्क फॉर पैसा, शुड आई आस्क फॉर क्या, मांगू क्या। और जैसे किवाड़ खुले, जैसे ही कृष्ण जी के दर्शन हुए, मुझे एक ऐसा अमेजिंग रियलाइजेशन हुआ कि यार मुझे ऑलरेडी इतना दिया है, मैं किस मुंह से मांगू। और अंदर से एक, जैसे कहते हैं ना, आत्मा बोल उठती है, विवेक बोल उठता है अंदर से। तो वो अंदर से एक आवाज निकली कि बस थैंक यू, धन्यवाद, आपने इतना दिया है, इतनी इज्जत दी है, पैसा दिया है, प्यार दिया है, परिवार दिया है, इतना कुछ दिया है, हेल्थ दी है, स्वास्थ्य दी है। तो थैंक यू निकलने लगे और आंखों से आंसू बहने लगे। और अंत में मैंने कहा कि भाई वो बहुत लकी होते हैं जिनको एक मौका मिलता है क्या कहते हैं, सेवा करने का। क्योंकि कहते हैं ना, ईश्वर चुनते हैं कि भाई किसे सेवा का मौका दिया जाए। तो मैंने कहा सेवा का मौका देना प्रभु। और मैं बाहर निकला वहां से और हल्ला हंगामा, सब फोटो वोटो खींचने लगे। शाम का समय था, मेरे बॉडीगार्ड वगैरह सब मुझे लेकर गाड़ी में बैठाने लग गए। और हमारी एक लंबी सी कैवलकेड थी, आगे की 2 गाड़ी, पीछे की 2 गाड़ी, बीच की मेरी गाड़ी। तो ऐसा हम पूरे कॉन्वॉय में जैसे निकल रहे थे। क्योंकि मथुरा वृंदावन अगर आप एरिया जानते हैं तो लोग वहां पे सेलिब्रिटीज जो है वो बिना बॉडीगार्ड के जा ही नहीं सकते हैं, क्राउड का क्रेज इतना है। तो वहां से हम निकलने लगे और जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा तो एक गोरा इंसान चोटी के साथ में, कुर्ता पहना हुआ, झोला पहना हुआ, मेरे सामने आया और अजीब से एक्सेंट में हिंदी में बात करने लग गया मुझे कि विवेक भैया आपकी मदद की जरूरत है। तो मैंने 1 सेकंड के लिए सोचा कि शायद ये टिपिकल हरे कृष्णा होगा, आएगा बोलेगा इतनी गीता खरीद लो आप, या इतना डोनेशन दे दो आप। तो मैंने कहा ठीक है, अब डोनेशन दे देंगे, क्या है। तो कहता मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपकी मदद चाहिए। अब अंदर मैंने अभी मांगा कि सेवा का मौका देना, बाहर आते ही ये आया हरे कृष्णा कहता है और कहता है कि आपकी मदद चाहिए। तो कहीं मेरे दिमाग में वो बात क्लिक हुई। मैंने कहा ठीक है बताइए क्या मदद चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कल सुबह तक अगर आप अभी नहीं गए तो कल सुबह तक कुछ बच्चियां हैं जिनको बेचा जाएगा। मैं शॉक हो गया, मुझे लगा कि यार ये तो हमारी पुरानी 1980s की गंदी हिंदी फिल्मों के प्लॉट हुआ करते थे। आज के हिंदुस्तान में ऐसा थोड़ी हो सकता है, वो भी वृंदावन जैसे शहर में जहाँ पे इतने रिलीजियस टूरिस्ट आते हैं, इतने अच्छे लोग आते हैं, ये कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल। और उन्होंने कहा आप प्लीज मेरे साथ चलिए, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है। अच्छा, वहां गलियां इतनी सक्रिय थी, इतनी छोटी थी कि वहां पे एक कॉन्वॉय, गाड़ियां वाड़ियां कुछ नहीं जा सकती। तो उतर के ऑटो में बैठना पड़ा। मेरे बॉडीगार्ड भी बेचारे कोई बाहर लटक रहे हैं ऑटो के साथ में, कोई पीछे आ रहे हैं। बट जब वहां पहुंचे तो मेरे लिए वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। मेरे लिए वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट इसीलिए था क्योंकि जितना बड़ा मेरा शायद बाथरूम हो, उतनी सी जगह में 33 लड़कियां, सबसे बड़ी 13 साल की, सबसे छोटी केवल 5 साल की, हिंदुस्तान के कोने कोने से, उत्तर भारत के कोने कोने से वहां पे कई दिनों से पड़ी हुई थी। They were sleeping there, eating there, going to the toilet there in that small room. No windows, टिन का कमरा था, छपड़ा जिसे कहते हैं, जिसमें हम जानवर को ना रखें, और लड़कियों को बेचा जा रहा था। एंड फॉर मी इट वाज शॉक कि हम किस तरह से सोसाइटी में रह रहे हैं जैसे कि सब कुछ ठीक चल रहा है। और उनकी रेस्क्यू की, प्रशासन को फोन किया। मैंने कहा अभी या आप पहुंचेंगे या तो मीडिया, आप बताइए, आपकी चॉइस है। तो भागे दौड़े सब आए, उन्होंने वहां से सब ऑपरेशन में हेल्प किया, बच्चों को हमने रेस्क्यू किया। कई बच्चियों को हम पहुंचा पाए, 17 बच्चियां रह गई, नहीं पहुंचा पाए। इतनी छोटी थी कि उनको याद ही नहीं था कि मैं कहाँ रहती हूँ, कहाँ से आई हूँ। जो कोऑर्डिनेशन था वो हो ही नहीं पाया। तो हमने डिसीजन लिया, मैंने घर वहां पे एक रेंट किया,
और कहा कि इनको यहाँ रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे और इनको पढ़ाई लिखाई करना शुरू करेंगे, इनको सशक्तिकरण इनका एजुकेशन से करेंगे। और वो दिन 12 साल पहले जो एक पहल रखी देवी माँ के नाम से, प्रोजेक्ट देवी, डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ वृंदावन गर्ल्स इनिशिएटिव, आज ईश्वर की इतनी कृपा रही कि 3 फुल स्कूल बन गए हमारे, और आज हम 2200 बच्चियों को फ्री फूड, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर देते हैं। और उस चीज का जो इम्पैक्ट है, मतलब मैंने ईश्वर की कृपा से 30 से ज्यादा अवार्ड जीते हैं, फिल्म फेयर हो, स्क्रीन अवार्ड हो, हर किस्म का अवार्ड जीता है। फोर्ब्स ने मुझे टॉप 40 फिलैंथ्रोपिस्ट इन द वर्ल्ड अंडर द एज ऑफ 40 का खिताब भी दिया। लेकिन जब मैं इन बच्चियों को देखता हूं कि इनको एक स्कॉलरशिप मिल गई, एक लड़की यूके निकल गई, एक स्कॉलरशिप मिल गई, एक लड़की कनाडा निकल गई, कहां से कहां चली गई गांव की लड़कियां, मेरे लिए ये मेरी लिविंग ब्रीदिंग ट्रॉफीज है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी अवार्ड है। मुझे लगता है कि मैंने अगर लाइफ में कुछ पाया है तो इनका सशक्तिकरण करके कुछ पाया है। और जो वो मुझे विवेक भैया करके आशीर्वाद भेजती हैं, कभी कभी उनके मैसेजेस आते हैं, कभी कभी उनके ईमेल आते हैं, दिल इतना खुश हो जाता है। आई फील कि जितना कुछ है ना, बंगला, गाड़ी, संपत्ति, ये सब चीजें ठीक है, लेकिन ये जो कमाए, ये जो कर्म कमाए, ये कर्म का कोई हिसाब ही नहीं है, इतना अच्छा लगता है। आई फील कि हम जो अभी फाइनेंस पेयर के साथ करने जा रहे हैं, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, देखिए, कोचिंग अपना बिजनेस है, एजुकेशन हिंदुस्तान में एक बिजनेस है, और जब बिजनेस अच्छा चलेगा तो आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और कोचिंग भी अच्छी कर पाएंगे। आप और अच्छे टीचर ला पाएंगे, आप और अच्छे टीचिंग एड्स ला पाएंगे, आप नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर पाएंगे, अपग्रेड कर पाएंगे, और सबको आज चाहिए ये। लेकिन बहुत सारे ऐसे होनहार बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते। और फाइनेंस पेयर करने का मकसद ये था, जब हमने को फाउंड की फाइनेंस पेयर, जब सुनीत, रोहित ये सब मेरे पास आए, तो मुझे एक्साइटमेंट किस चीज की लगी कि क्या बात है, इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग, कोई लोड नहीं बच्चों पे। और जब मैंने अपनी ही यूनिवर्सिटी पे उसका प्रयोग किया, अपनी ही यूनिवर्सिटी पे उसको अप्लाई किया, तो एक कमाल की चीज हो गई। मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशंस 37% जंप हुई, 37% ईयर ऑन ईयर में। यानी कि जो मेरी एक्सपेक्टेड ग्रोथ थी उससे 37% ज्यादा मुझे ग्रोथ मिली, क्योंकि लोगों को लगा यार ये कोर्स महंगा भी है तो ठीक है, मैं 10-10 हजार रुपए, 15-15 हजार रुपए पर मंथ करके इसको निपटा दूंगा, और इंटरेस्ट फ्री है तो क्यों ना करूं। तो इतनी जो ईज बनी फाइनेंस पेयर से, आई मीन ऑफ कोर्स आप भी जानते हैं कि गूगल कोई भी नॉर्मल किसी कंपनी को इंक्यूबेट नहीं करता है, कुछ इस चीज में देखा होगा इसीलिए उन्होंने इंक्यूबेट किया। और हैं हमारे, मतलब जितनी टीम है उनमें आईआईटी, आईआईएम्स इतने भरे पड़े हुए हैं कि आपको लगता है कि दुनिया भर की ब्रेन पूल हमारी टीम है, और इसीलिए फाइनेंस पेयर की ग्रोथ हुई है। मतलब मुझे याद है जब हमने इसकी शुरुआत की थी तो शायद हम 3 या 4 स्कूल या कॉलेज में थे। आज हम 2 साल के अंदर अंदर महज 2500 यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया हो चुके हैं। विदेश के लोग आज टाई अप करना चाहते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी लिबरेटिंग है, और एक सर्कल ऑफ ग्रोथ, सर्कल ऑफ वेल्थ क्रिएशन। मैं आपकी जेब में हाथ डाल के पैसा निकालूं, उससे अच्छा है कि आप और मैं दोनों मिलकर वेल्थ क्रिएशन करें और उसके अंदर भागीदार बने। तो इसमें ये सर्कल इतना खूबसूरत बैठा हुआ है कि हमारे साथ हमारे जितने पार्टनर्स हैं उनका फायदा होता है, जितने बच्चे हैं उनका फायदा होता है। मैं एक स्कूल में गया हुआ था प्रमोशन करने, और मेरी आयु उतनी है नहीं, लेकिन कुछ पेरेंट्स आकर मेरे चरण छूने लग गए, एंड आई वाज सो एम्बैरेस्ड। मुझे शर्म आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये क्या कर रहे हैं आप, प्लीज यार मुझे प्लीज आप ऐसे शर्मिंदा मत कीजिए। तो उन्होंने कहा कि सर जो आपने हमारे लिए किया ना, हमारा सपना था, लेकिन एक टाइम पे इतना पैसा देने की हमारी औकात तब थी नहीं, एंड आपकी वजह से हमारे ड्रीम स्कूल में हमारे बच्चे की ये एडमिशन हो गई। और इस टाइप के जो रिएक्शंस आते हैं, फिर जब हमने अपना इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च किया, इतने इमोशनल रिएक्शन आए, लोग रोने लगे। मतलब पेरेंट्स का जो एक इमोशनल कनेक्ट है एजुकेशन के साथ में, वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे देश में। अगर आप सोचें, जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स की जो आशा थी, उम्मीद थी, वो हमारे से एक ही थी कि भैया ठीक से पढ़ लेना, बस अच्छे से पढ़ लेना, आगे बढ़ जाना लाइफ में, यही आशा थी, उम्मीद थी। और ये एक इमोशनल कनेक्ट है। जब हमने ये इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की, कि ईश्वर ना करे जब आपके
घर में कोई ऐसी एक्सीडेंट हो जाए, कोई ऐसा बुरा हादसा हो जाए, जहां जो ब्रेड अर्नर है, जो कमाई करता है, जो घर को चलाता है, उसे अगर कुछ हो जाए तो भी आपके बच्चे की एजुकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके बच्चे की एजुकेशन वैसे की वैसे ही चलते जाएगी टिल द चाइल्ड कंप्लीट्स द एजुकेशन। इस तरह की इंश्योरेंस स्कीम हिंदुस्तान में हम एक ही है जो लाए, और हमने ही पहल रखी। और जब हम पहले गए उनके पास में, इंश्योरेंस कंपनियों के पास में, उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये स्कीम कैसे चलेगी। हमने बैठ के उनको इकोनॉमिक समझाई कि हम ऐसे चलाएंगे इस स्कीम को, और तब जाके उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया। और आज ये स्कीम लाखों स्टूडेंट्स में, आज हमारे पास में करीबन 10 लाख पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हैं, 10 लाख महज 2 साल। और इसे मुझे लगता है कि ये एक ग्रोथ जो है, इस पे ऐसा नहीं कि हमने तेल की तरह पानी बहाया, पैसा बहाया है और तेल की तरह इसके अंदर डाल दिया कि अग्नि में तेल डालो और बढ़ता जाएगा, जैसे लोग करते हैं स्टार्टअप्स में ज्यादातर। मेरी एक स्टार्टअप में बहुत डिसिप्लिन रही है। मैंने रोहित को और सुनीत को, इन लोगों को बहुत टाइट करके रखा हुआ है कि नहीं, स्टार्टअप का डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, इकोनॉमिक डिसिप्लिन से चलना पड़ेगा। उसके बावजूद हमारी ये जो ग्रोथ हुई है, दिस आई बिलीव इज बिकॉज ऑफ कार्मिक वेल्थ। ये अच्छे कर्म हम जो करने निकले, लोगों की मदद करने निकले, लोगों के साथ एक पार्टनरशिप क्रिएट करने निकले। ये ना कि यार हम इतना माल कमा लेंगे, एक सोशल इंपैक्ट, बट फॉर प्रॉफिट है, ठीक है, लेकिन सोशल इंपैक्ट हमारा पहला सोच है, पहला विचार है कि हमको सोसाइटी में एक इंपैक्ट क्रिएट करना है। और इसी की वजह से इतने पार्टनर इतनी जल्दी हुए, इतने लोग अडॉप्ट कर गए। जहां दुनिया में एनबीएफसीज में सिमिलर स्कीम चलती है, जहां 16-17% खींचते हैं वो पेरेंट्स से नोच कर, आपसे भी खींचते हैं, एक जेब में डालते हैं, पेरेंट्स से भी खींचते हैं, एक जेब में डालते हैं, डबल जहां से कमाई कर रहे हैं, वहां पे वो लोगों को जो एक एनपीए रेट होता है, जहां पे डिफॉल्ट हो जाता है, लोग भरते नहीं है पैसा, 16-16, 17-17% चलता है। हमारे यहाँ 0%। कोई एक पेरेंट डिफॉल्ट नहीं करता है, क्योंकि इमोशनल रिश्ता है। उनको लगता है कि नहीं यार, ये लोग मेरे साथ खड़े हैं, मुझे इनके साथ खड़े रहना। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे बहुत बड़े बड़े एसोसिएट्स हैं, इंटरनेशनल पार्टनर्स भी हो गए, एमिटी है, फ्रैंकफिन है, एनआईआईटी है, टॉपर है, अपग्रेड है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब बड़े बड़े एसोसिएट्स हो गए। लेकिन हमारे लिए कोई बड़ा कोई छोटा है, एवरीवन इज एन इक्वल पार्टनर। इसीलिए मैं सीएफआई के हर मेंबर को यही कहना चाहूंगा कि आपकी कोचिंग क्लासेस अगर छोटी हैं, बड़ी हैं, हमें उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। हम फ्यूचर देख रहे हैं, आप लोगों के साथ में हम देख रहे हैं कि आज आपके पास में 300 बच्चे हैं, आप और हम मिलकर इन 300 बच्चों को 3000 बच्चों तक कैसे ले जाएं, क्योंकि इसी में भारत की भी अभिवृद्धि है, इसी में हमारी सबकी ग्रोथ है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ फाइनेंस पियर फैमिली। इसीलिए मैं हमेशा ऐसे कहता हूं, फाइनेंस पियर फैमिली, नॉट कॉर्पोरेशन। तो मैं कहना चाहूंगा आप सभी को कि थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ फाइनेंस पियर फैमिली। आप सबको आमंत्रित करना चाहूंगा कि हम मिलकर वाकई में भारत में कुछ कमाल करें। लेट अस रीच, भारत के चप्पे चप्पे तक, कोने कोने तक पहुंचे। हर टीचर का ये एम होना चाहिए कि एक दिन उसकी खुद की कोचिंग इंस्टीट्यूट होगी, और इसी तरह ये स्प्रेड होगा। बहुत जरूरत है हिंदुस्तान में, एंड लेट अस ऑल वर्क टुगेदर फॉर दिस। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू विवेक जी। Thank you, sir. Thank you, Vivek sir. Your words Thank you. coming from the heart. Thank you, reflects sir. each Thank and you every very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Whatever Thank you, it Vivek is, sir. Thank you. Happy Dasara to you. Happy Happy Dasara. Dasara to all of you. Very Thank you, motivating. sir. Very motivating. Very motivating. Thank you, sir. You were Thank not you. knowing the other. You were not knowing the other side of the coin, sir. Thank you, sir. We never know that there is a hidden talent of Vivek sir. हाँ बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया बोले सर। बहुत धन्यवाद Vivek sir. थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। विवेक भैया दिल- ऐसे ही करते रहिए सर, ऐसे ही करते रहिए। विवेक आप सर, लोगों आप का दिल से प्यार बोले, रहे, जो समर्थन बात रहे, दिल को छू सपोर्ट गई। रहे, बहुत कुछ साथ Motivating, sir. Keep on motivating. Very good. थैंक यू सो मच। Quite motivating. थैंक यू सर। बहुत प्रेरणादायक, Thank बहुत ही अच्छा। Thank you, Vivek sir. Thank you, sir. Thank you. ओके, Thank जय you very हिंद। much. आपने दिन बना दिया सर, दिन बना दिया। क्यों? चलिए कृष्णा जी, बहुत बढ़िया आपने मैनेज कर लिया। Congratulations. It was really great
inspiration from Vivek sir, and I think it resonates with each and every teacher here and each and every institution on here. The passion with which we take up. ऐसे success stories कई सारे हमारे पास भी होंगे, rags to riches stories, जो बच्चे फीस 1 साल का भरने के लिए काफी तकलीफ उठाता है, वो 4 साल बाद 1 महीने में कमा लेता है. So that is a kind of transformation which happens through coaching, and we are proud to be part of that family, and it is all our right that we have to empower this and we have to take coaching to a very big level. I now invite Bipin sir from Goal, a stalwart, great academician. Sir, please. थैंक यू सो मच. नवरात्रि और विजयादशमी को आप सबों को बहुत सारी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं. बहुत अच्छा लगा. अभी अनुष्ठान से बीच में उठकर मैं आया हूं. पिछले 1 घंटे से लगातार मैं आप लोगों की बातें सुन पा रहा हूं और बिल्कुल मेस्मराइज्ड हो गया हूं मैं कि जिस तरीके से CFI ने इनिशिएटिव लिया है, बहुत बधाई के पात्र हैं. और निश्चित रूप से CFI के हर एक्टिविटी के साथ हमारा जुड़ना और हम लोग का साथ चलना, ये सौभाग्य की बात है हमारे लिए. तो सबसे पहले जो अभी हमारे अतिथि के रूप में